جب آپ نشا کو پسند کرتے تھے تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ کشمالا کی روئی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے بالاج نے لب بھینچے۔ آج اس پہ ساری حقیقت آشکار ہو گئی تھی جو بالاج نہیں چاہتا تھا۔ مت ماری گئی تھی؟ کر لی، وہ منہ پھیر گیا۔ اسی لیے آج تک آپ میرے قریب نہیں آئے نا؟ تمہاری سوچ کو 100 توپوں کی سلامی مسز، جو سمجھنا ہے سمجھو۔ مجھے منافق شخص کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ قبر سے کپڑے بیگ میں ٹھونسنے لگی۔ اچھا سنو، کتنے دن کے لیے جا رہی ہو؟ بالاج کی بات پہ وہ تپ گئی۔ ہمیشہ کے لیے۔ اب اپنی نشا سے کر لینا شادی۔ وہ بیگ لے کے جانے لگی کہ بالاج نے اسے کھینچ کے اپنے اوپر گرایا۔ اگر جانا ہے تو پہلے میرا حق ادا کر کے جاؤ۔ وہ اس کا دوپٹہ ایک طرف رکھتا، اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا کہ اسی پل کمرے میں چھائی گھٹن کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھی، جہاں کشمالا کی سرخ روئی ہوئی آنکھیں اور کانپتے ہوئے ہاتھ اس کے اندر چلنے والے جذبات کے لاوے کی گواہی دے رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں وہ دھندلی تصویریں اور خطوط تھے جو کچھ ہی دیر پہلے نشا نے بڑی مکاری سے اس تک پہنچائے تھے، جنہیں دیکھ کر کشمالا کی روح تک کانپ اٹھی تھی۔ سامنے ہی صوفے پر بالاج اپنے کوٹ کے بٹن کھولے، ہمیشہ کی طرح پرسکون، باوقار مگر حد درجہ سنگ دل چہرہ سجائے بیٹھا تھا، جس کے چہرے پر کسی پچھتاوے کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ کشمالا سے اب مزید یہ دم گھونٹ دینے والی خاموشی برداشت نہ ہوئی، اور اس کی روندی ہوئی درد میں ڈوبی آواز نے کمرے کے سکوت کو تار تار کر دیا۔ جب آپ نشا کو پسند کرتے تھے تو مجھ سے شادی کیوں کی بالاج؟ بالاج نے سگریٹ کی راکھ ایشٹرے میں جھٹکی اور لب بھینچ کر کشمالا کی روئی ہوئی التجا کرتی آنکھوں میں دیکھا، جہاں برسوں کی محبت اور سچ جانے کی تڑپ چھلک رہی تھی۔ آج وہ سچ جسے بالاج ایک گہرے راز کی طرح چھپائے رکھنا چاہتا تھا، اس کے سامنے برہنہ ہو کر کھڑا تھا، مگر بالاج کی خوددار اور مغرور مردانہ انا نے اسے ذرا بھی جھکنے نہ دیا۔ اس نے انتہائی لاپرواہی اور روکھے پن سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑا اور بولا، مت ماری گئی تھی؟ کر لی شادی؟ اب حساب مانگنے کا وقت نکل چکا ہے۔ بالاج کے اس ایک سر جملے نے کشمالا کے سینے پر خنجر چلا دیا۔ وہ تڑپ اٹھی، آنکھوں سے آنسوؤں کا نیا سیلاب بہہ نکلا، اور اس نے کپ کپاتے لہجے میں اس زخم پر انگلی رکھ دی جو شادی کے بعد سے روز اسے تڑپاتا تھا۔ اسی لیے آج تک آپ میرے قریب نہیں آئے نا؟ اسی لیے آپ نے مجھے صرف ایک نام کی بیوی بنا کر اس سونے کے پنجرے میں قید کر رکھا ہے، تاکہ آپ اپنے دل میں اسی کی تصویر سجا کر رکھیں۔ کشمالا کی اس بات پر بالاج کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ اس نے غصے اور زہریلے طنز سے کشمالا کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور بولا، تمہاری اس فضول اور گھٹیا سوچ کو 100 توپوں کی سلامی مسز بالاج، جو سمجھنا ہے سمجھو۔ مجھے کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ سنتے ہی کشمالا کا صبر اور ضبط کا آخری بندھن بھی ٹوٹ گیا۔ اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے آنسو پونچھے اور نفرت بھرے لہجے میں بولی، مجھے آپ جیسے منافق اور بے حس شخص کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہنا۔ آپ کا یہ روپ میرے لیے کسی زہر سے کم نہیں۔ کشمالا نے پلٹ کر الماری کھولی اور اندھا دھند اپنے کپڑے بیڈ پر بڑے بڑے سوٹ کیس میں ڈھانسنے لگی۔ بالاج نے صوفے سے ٹیک لگائے سرد نگاہوں سے اس کے کانپتے ہاتھوں اور بکھرے ہوئے وجود کو دیکھا اور انتہائی چپتے ہوئے انداز میں پوچھا، اچھا سنو، کتنے دن کے لیے جا رہی ہو؟ بالاج کا یہ طنزیہ سوال کشمالا کے زخموں پر نمک چھڑک رہا تھا۔ نمک چھڑک رہا۔ وہ سوٹ کیس زپ بند کرتے ہوئے تپ کر چیخی، ہمیشہ کے لیے میں اس گھر سے اپنی ذات کا جنازہ لے کر جا رہی ہوں۔ اب آپ آزاد ہیں، جائیے اور اپنی اس نشا سے کر لیجیے شادی۔ وہ جیسے ہی سوٹ کیس کا ہینڈل تھام کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، بالاج کی برداشت کی حدیں پار ہو گئیں۔ اس کی خاموش اور پرسکون آنکھوں میں ایک دم جنون اور غصے کی خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے قدم اٹھائے، کشمالا کی نازک کلائی کو اپنی آہنی گرفت میں جکڑا اور ایک ہی جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے چوڑے سینے پر گرا لیا۔ کشمالا کے منہ سے ایک ہی بے ساختہ چیخ نکلی۔ اس کا وجود بالاج کی تپتی ہوئی قربت سے لرز اٹھا۔ بالاج نے اس کے رخساروں پر بکھری ہوئی زلفوں کو پیچھے کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا بولڈ اور جنونی تاثر تھا جس نے کشمالا کی سانسیں روک دیں۔ بالاج نے اس کی ریشمی دوپٹہ ایک جھٹکے سے کندھے سے اتار کر فرش پر پھینکا اور اس کے چہرے کے بالکل قریب جھک کر گمگیر، مدہوش کن اور پرجوش آواز میں سرگوشی کی، اگر اس گھر سے جانا ہے نا تو پہلے میرا حق ادا کر کے جاؤ مسز بالاج۔ کشمالا کا دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا۔ اس نے ہاتھ سے بالاج کے سینے کو دھکیلنے کی کوشش کی، مگر بالاج کی گرفت فولادی تھی۔ وہ اس کے سراپے کو اپنی تپتی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے اس کے لرزتے ہوئے
गुलाबी लबों को अपनी वहशियाना और बेखुद गिरफ्त में लेने ही वाला था कि ऐन इसी पल कमरे की लकड़ी के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई और बाहर से बलाज की वालदा की आवाज़ गूंजी। दरवाजे पर वालदा की आवाज़ सुनते ही कशमाला का जिस्म खौफ और शर्म से मजीद कांप उठा। इसे अपने दोनों हाथ बलाज के सीने पर जमा कर पूरी ताकत से इसे पीछे धकेलने की कोशिश की। बलाज ने गहरा सांस लिया। इसकी सुर्ख आंखों में गुस्सा और अधूरी ख्वाहिश की तपिश साफ नजर आ रही थी। इसे इंतहाई बेदरी से कशमाला की कलाई छोड़ी और एकदम पीछे हट गया। कशमाला ने जल्दी से ज़मीन पर गिरा हुआ अपना दुपट्टा उठाया और इसे अपने गले में लपेटा और कांपते हाथों से अपने बिखरे बाल संवारने लगी। इसका दिल सीने में इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। बलाज ने अपने चेहरे पर हमेशा की तरह वही संजीदा और सख्त तासुर सजाया, अपनी कमीज़ के बटन ठीक किए और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने इसकी अम्मी खड़ी थीं। इनके चेहरे पर परेशानी थी। इन्होंने अंदर का माहौल देखा। ज़मीन पर पड़ा सूटकेस और कशमाला का उतरा हुआ चेहरा देखकर इनके माथे पर सलवटें आ गईं। क्या हो रहा है यहाँ बलाज? ये बैग कैसा है? और कशमाला, तुम इतनी रोई हुई क्यों लग रही हो बेटा? बलाज की अम्मी ने अंदर आते हुए सवाल किया। कशमाला कुछ बोलने ही वाली थी। अपनी सारी तकलीफ़ और दुख सास के सामने बयान करने लगी थी कि बलाज ने फ़ौरन बात काट दी और इंतहाई आम से लहजे में बोला, कुछ नहीं अम्मी, ये तो बस अपनी कुछ पुराने कपड़े निकाल रही थी जिसने गरीबों को देने के लिए अलग किए हैं और थकन की वजह से इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है। आप बताइए, खैरियत से आई हैं? बलाज के इस झूठ ने कशमाला को अंदर तक हिला के रख दिया। वह शख्स की मक्कारी और चालाकी पर हैरान रह गई। बलाज की अम्मी ने दोनों को गौर से देखा। शायद इन्हें कुछ शक तो हुआ, मगर इन्होंने बात बढ़ाना मुनासिब न समझा और बोली, ठीक है, तुम दोनों नीचे आओ, खाना लग चुका है और निशा भी आई हुई है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। निशा का नाम सुनते ही कशमाला के जख्मों पर जैसे किसी ने नमक छिड़क दिया हो। इसकी आंखों में दोबारा आंसू तैरने लगे, लेकिन सास के सामने वो कुछ न कह सकी और खामोशी से सर झुका लिया। वालदा के कमरे से बाहर निकलते ही बलाज ने दरवाजा बंद किया और घूमकर कशमाला को देखा। इसके चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट थी। वो कशमाला के बिल्कुल करीब आया और धीमी चुभती हुई आवाज में बोला, देखा तुमने, तुम चाह कर भी इस घर से नहीं जा सकती जब तक मैं न चाहूँ। तुम मेरी मर्जी के बगैर एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती। अब चुपचाप अपना ये रोना धोना बंद करो, ये बैग वापस कबर्ड में रखो और नीचे चलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कशमाला ने नफरत से अपना रुख मोड़ लिया और वहीं बेड के किनारे बैठकर अपने चेहरे को हाथों में छुपाकर रोने लगी। बलाज बाहर निकल गया, मगर जाते जाते इसके दिल में भी एक अजीब सी बेचैनी थी जो वो खुद से भी छुपाना चाहता था। रात के खाने की मेज पर माहौल बहुत अजीब था। निशा बड़े सच संवर कर बलाज के बिल्कुल सामने बैठी थी और बार बार अपनी बातों और नजरों से बलाज को मुतवज्जा करने की कोशिश कर रही थी। वो कशमाला को देखकर जानबूझकर बलाज से इसके पुराने दिनों की बातें छेड़ रही थी। बलाज, तुम्हें याद है ना, जब हम यूनिवर्सिटी में साथ थे तो तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करते थे? कशमाला का नवाला, तुम मेरे साथ क्या कुछ नहीं कर सकते थे? कशमाला का नवाला हलक में ही अटक गया। इसने चुपचाप प्लेट की तरफ देखा। बलाज ने निशा की बात का कोई खास जवाब नहीं दिया, लेकिन इसने कशमाला के हाथ की लर्जिश को महसूस कर लिया था। बलाज ने सबके सामने अचानक कशमाला की प्लेट में खाना डाला और नरमी का ड्रामा करते हुए बोला, कशमाला, तुमने कुछ खाया नहीं? अपनी सेहत का ख्याल रखा करो जान। कशमाला जानती थी ये सिर्फ दिखावा है, मगर इसके दिल में बलाज की इस छोटी सी हरकत ने भी हलचल मचा दी। खाना खत्म होने के बाद जब सब अपने अपने कमरों में चले गए, कशमाला थकी हारी अपने कमरे में आई। कमरे की बत्ती बंद थी और सिर्फ खिड़की से चांद की हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। कशमाला बेड के एक तरफ जाकर लेट गई और दीवार की तरफ मुंह कर लिया। थोड़ी देर बाद बलाज कमरे में दाखिल हुआ। इसे अपने जूते उतारे और बेड की दूसरी तरफ आकर लेट गया। कमरे में गहरी खामोशी थी, सिर्फ इन दोनों की सांसों की आवाज़ आ रही थी। कशमाला समझ रही थी कि बलाज सो जाएगा, लेकिन अचानक बलाज का हाथ कशमाला की कमर के गिर्द लिपट गया और कशमाला का पूरा जिस्म बर्फ की तरह जम गया। इसने झटके से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर बलाज की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। बलाज ने इसे अपनी तरफ घुमाया। अंधेरे में इसकी आंखें चमक रही थी। इसे कशमाला के चेहरे पर आई लटक को पीछे किया और इसकी आंखों में झांकते हुए इंतहाई मध्यम और दर्द भरी आवाज में कहा, तुम जितना मुझसे दूर भागोगी, मैं इतना ही तुम्हारे करीब आऊंगा। कशमाला, तुम मुझे मुनाफिक समझती हो ना, तो फिर देखो कि ये मुनाफिक शख्स तुमसे कैसा हक मांगता है। कशमाला के दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। बलाज का ये लिम्स और इसका रूप इसे खौफजदा भी कर रहा था। उसके अंदर एक अजीब सी सच्ची मोहब्बत की आग भी जला रहा था, जैसे वो चाहकर भी बुझा नहीं पा रही थी। अंधेरे में कमरे बलाज की तपती सांसें कशमाला के चेहरे को छू रही थी। उसका मजबूत हाथ कशमाला की कमर पर गिरफ्त सख्त किए हुए था।
کشمالہ نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور دونوں ہاتھوں سے بلاج کے چوڑے سینے کو پیچھے دھکیلتے ہوئے غصے اور بے بسی سے بولی، چھوڑیے مجھے بلاج، آپ کا یہ حق مانگنا صرف آپ کی ضد ہے، اس میں کوئی محبت نہیں۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں جا کر اسی سے یہ سب کہیے، مجھے اپنی گناہوں کا کفارہ مت بنائیے۔ کشمالہ کی آواز میں چھپے درد اور طنز نے بلاج کے تپتے ہوئے جذبات پر جیسے برف کا پانی ڈال دیا ہو۔ بلاج نے چند سیکنڈز کے لیے گہری اور زخمی نظروں سے کشمالہ کے چہرے کو دیکھا، جہاں روشنی اور سائے کے کھیل میں آنسو چمک رہے تھے۔ بلاج کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے جھٹکے سے کشمالہ کو چھوڑا اور بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے فرش پر پڑے اپنے سگریٹ کے پیکٹ سے سگریٹ نکالی، اسے سلگایا اور بالکنی کی طرف نکل گیا، جہاں رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے اندر کے غبار کو ٹھنڈا کرنے میں ناکام کر رہی تھی۔ کشمالہ بیڈ کے کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی اور اپنے دوپٹے کو سختی سے پکڑ کر سسکیاں لینے لگی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں حویلی کے برآمدے پر پڑی تو ماحول میں رات کا طوفان اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ کشمالہ منہ ہاتھ دھو کر کچن میں چلی گئی تاکہ ناشتہ بنا سکے، مگر اس کے دل پر چھایا بوجھ لمحہ بلمحہ بڑھ رہا تھا۔ ابھی وہ چائے کے کپ ٹرے میں سجا ہی رہی تھی کہ کچن کے دروازے پر نشا کی منحوس مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ نشا نے انتہائی چمکدار اور خوبصورت ریشمی سوٹ پہن رکھا تھا، اس کے چہرے پر گہری عیاری تھی۔ اترا کر کچن کے کاؤنٹر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور طنزیہ لہجے میں بولی، ارے واہ کشمالہ، اتنی اچھی گھریلو بیوی بنی پھرتی ہو تم، لیکن کیا فائدہ اس ساری خدمت کا جس مرد کے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ ہی نہ ہو، اس کے لیے چاہے جان بھی دے دو تو کوئی قدر نہیں ہوتی۔ کشمالہ نے اپنے ہاتھ کی لرزش پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اس نے چائے کی کیتلی چولہے سے اتاری اور نشا کی آنکھوں میں دیکھ کر پرسکون رہنے کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، بلاج میرے شوہر ہے نشا، اور میرے اور ان کے رشتے میں کسی تیسرے کے بولنے کی گنجائش نہیں۔ تم مہمان ہو، بہتر ہے کہ مہمان بن کر ہی رہو۔ نشا نے کھلکھلا کر جھوٹا کہکا لگایا اور کشمالہ کے بالکل قریب آ کر دھیمی زہریلی سرگوشی میں بولی، شوہر؟ کیسا شوہر جو راتوں کو بالکنی میں کھڑے ہو کر سگریٹ کے دھوئیں میں کسی اور کے نام کی کش لیتا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تصاویر جھوٹی تھی؟ بلاج نے تم سے شادی صرف خاندان کے دباؤ میں کی تھی، اس کا دل آج بھی میرے پاس ہے اور بہت جلد وہ خود تمہیں اس گھر سے باہر نکالے گا۔ اسی لمحے بلاج کچن کی طرف ناشتے کی تلاش میں آ نکلا۔ نشا نے جیسے بلاج کے قدموں کی آہٹ سنی، اس کا رنگ ڈھنگ ایک سیکنڈ میں بدل گیا اور وہ انتہائی معصوم اور لاچار بن کر بلاج کی طرف لپکی۔ او بلاج، تم آ گئے؟ میں تو بس کشمالہ کی مدد کر رہی تھی، اور دیکھو نا اس نے اتنی محنت سے تمہارے لیے ناشتہ بنایا۔ بلاج نے دونوں کا جائزہ لیا۔ اس نے کشمالہ کے چہرے پر تیرتی ہوئی تکلیف کو دیکھ لیا، مگر وہ چہرے پر مکمل سرد مہری سے جائے رہا۔ اس نے نشا کی طرف دیکھا اور انتہائی رسمی لہجے میں بولا، شکریہ نشا، لیکن مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، میں ناشتہ باہر کر لوں گا۔ بلاج مڑ کر جانے لگا تو نشا نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا کوٹ جو صوفے پر پڑا تھا اٹھایا اور بلاج کے پہنانے کے بہانے اس کے ہر درجہ قریب ہو گئی۔ کشمالہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے تن بدن میں حسد اور آگ لگ گئی۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے تپتا ہوا کوئلہ رکھ دیا ہو۔ بلاج نے نشا سے کوٹ لیا، خود پہنا اور بغیر کشمالہ کی طرف دیکھے باہر نکل گیا۔ جاتے جاتے نشا نے بڑی چلاکی کے ساتھ بلاج کے کوٹ کی اندرونی جیب میں اپنا ایک مخصوص پرفیوم لگا رومال کر گرا دیا۔ شام کے وقت جب بلاج آفس سے واپس لوٹا تو اس نے اپنا کوٹ بیڈ پر پھینکا اور شاور لینے باتھ روم چلا گیا۔ کشمالہ بہت جلدی سے اس کا کوٹ اٹھا کر ہینگر میں لٹکانے لگی کہ اچانک اس کی انگلیوں سے کوٹ کے اندرونی جیب سے وہ ریشمی رومال پھسل کر نیچے گر گیا۔ جیسے ہی کشمالہ نے وہ رومال اٹھایا، اس میں سے وہی تیز پرفیوم کی خوشبو آئی جو صبح نشا نے لگا رکھی تھی، اور رومال کے کونے پر نشا کے نام کا پہلا حرف کڑا ہوا تھا۔ کشمالہ کا پورا وجود لرز اٹھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے شوہر نے اس کی عزت مان کو اس کی رومال کی طرح پیروں تلے رون دیا۔ ابھی وہ اس رومال کو تھامے سکتہ کے عالم میں کھڑی ہی تھی کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور بلاج گیلے بالوں سے پانی چٹکتا ہوا باہر نکلا۔ اس کی نظر کشمالہ کے ہاتھ میں پکڑے اس رومال اور اس کی سرخ آنکھوں پر پڑی تو اس کے قدم وہیں چمک گئے۔ کمرے میں پھیلی پرفیوم کی تیز خوشبو کشمالہ کے لیے کسی زہر کی گھونٹ سے کم نہ تھی۔ اس کے ہاتھ میں کامتا ہوا ریشمی رومال اس کی بکھرتی ہوئی امیدوں کا ثبوت بن چکا تھا۔ بلاج نے گیلے تولیے سے اپنے بال پونچھتے ہوئے کشمالہ کے چہرے کی ویرانی اور اس کے ہاتھ میں موجود رومال کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر گہری سلوٹیں آ گئیں۔ کشمالہ نے ضبط کے تمام بندر توڑتے ہوئے رومال پوری طاقت سے بلاج کے سینے پر دے مارا۔ اس کی چیخ کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی گونجی، اب اس کے بعد بھی کوئی صفائی بچتی ہے بلاج صاحب؟
आप कहेंगे ये मेरी फजूल और घटिया सोच है। आपका जिस्म इस घर में और आपकी रूह इस निशा के पल्लू से बंधी है। अपनी जेबों में इसकी निशानियां लेकर घूमते हैं और रात को मुझ पर अपना हक जताने चले आते हैं। बलाज का पारा एक सेकंड के में चढ़ गया। इसे ज़मीन पर गिरते रुमाल को देखा जिसके कोने पर निशा के नाम का हर्फ चमक रहा था। इसे निशा की ये नीच हरकत समझने में एक पल भी न लगा, मगर कश्माला का बार बार का ये अंधा शक और इस पर बेवफाई की तोहमत इसकी मर्दाना वकार को बुरी तरह झंझोड़ गई। बलाज ने आगे बढ़कर कश्माला ने दोनों कंधों को अपनी आनी गिरफ्त में जकड़ा और इसे खींचकर दीवार पर लगी बड़ी ड्रेसिंग के शीशे के बिल्कुल सामने ला खड़ा किया। कश्माला के मुंह से दर्द भरी सिसकी निकली, मगर बलाज की गिरफ्त में कोई नरमी न आई। बलाज ने इसके कान के करीब झुककर गुस्से से दहकती हुई आवाज में कहा, देखो जरा अपने आप को इस आईने में मिसिस बलाज, क्या कमी रखी है खुदा ने तुम्हारे हुस्न में। तुम्हारा ये रूप, ये मासूमियत और ये नाजुक वजूद किसी भी मर्द को अपना दीवाना बनाने के लिए काफ़ी है, लेकिन तुम्हारा ये छोटा और शक से भरा हुआ दिमाग तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है। कश्माला ने आईने में अपने और बलाज के साए को देखा। बलाज के चेहरे पर इस वक्त बेइंतहा जलाल और गुस्सा था, मगर इसकी नज़रों में कश्माला के लिए एक अजीब सी तपिश भी मौजूद थी। बलाज ने इसका चेहरा उंगलियों से मोड़कर अपनी तरफ किया और इंतहाई पुरजोश, कड़वे और दिल दहला देने वाले लहजे में बोला, अगर मैं तुम्हारे अलावा किसी और को चाहता ना कश्माला, तो तुम इस कमरे में मेरी बीवी बनकर सांस भी ना ले रही होती। तुम मेरे निकाह में हो। मेरे दिल का फैसला सिर्फ मैं जानता हूँ, और जिस दिन मैंने किसी और को चाहा इस दिन तुम्हारे सामने आकर कहूँगा, छुपकर रुमाल नहीं रखूँगा। लेकिन तुमने कभी मुझे शोहर मानना ही कहा, तुम तो सिर्फ शक का बुत बनाकर बैठी हो। यह कहकर बलाज ने झटके से इसे छोड़ा, अपना कोट उठाकर कबर्ड में फेंका और बगैर दूसरी बात सुने गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। जबकि कश्माला आईने के सहारे नीचे बैठकर अपनी किस्मत और बलाज के इंतजार भरे रवैयों पर तड़पती रह गई। शाम के साए फैलते ही हवेली की डाइनिंग हॉल में एक बार फिर रौनक सज चुकी थी, क्योंकि बलाज के ताया और ख़ानदान के दीगर मुअज़्ज़िज़ लोग एक खसूसी ख़ानदानी दावत पर जमा थे। कश्माला ने अपने सारे दुख, आंसू और जलन को एक तरफ रखते हुए गहरे जामनी रंग का खूबसूरत रवायती जोड़ा पहन रखा था और बालों को सलीके से बांधकर वह सास के साथ मिलकर सबकी खातिर तवाज़ा में मसरूफ़ थी, क्योंकि ख़ानदानी रवायत के तहत इस एक खुशहाल और परफेक्ट बहू का किरदार निभाना था। बलाज भी सफ़ेद कुर्ता शलवार और वास्कट में बेइंतहा पुरकशिश और बावकार लग रहा था, मगर इसकी नज़रें रह रहकर कश्माला के उदास और खामोश चेहरे का ताक़ुब कर रही थीं। जब सब लोग खाने की मेड़ी में इसके गिर्द बैठे तो बलाज जानबूझकर कश्माला के बिल्कुल बराबर वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया, जबकि निशा सामने वाली नशिस्त पर मुंह बनाए कश्माला के हर अंदाज को हसद भरी निगाहों से देख रही थी। खाने के दौरान जहां सब लोग खानदानी और कारोबारी मामलात पर खुशगपियां कर रहे थे, वहीं मेज़ के नीचे बलाज ने खामोशी से कश्माला की लरसती हुई नाजुक हथेली को अपनी मजबूत गर्म गिरफ्त में ले लिया। कश्माला का पूरा वजूद करंट लगने की तरह कांप उठा। इसने अपना हाथ छुड़ाने की सरतोड़ कोशिश की, मगर बलाज ने इसकी उंगलियों को इस तरह जकड़ रखा था, अगर वह ज़्यादा जोर लगाती तो सबके सामने तमाशा बन जाती। बलाज चेहरे पर बिल्कुल मासूमियत और संजीदगी सजाए अपने ताया से बिजनेस की बातें कर रहा था और साथ ही अपनी उंगलियों के पोरों से कश्माला की हथेलियों को रोमानवी अंदाज में सहलाकर इसके अंदर के गुस्से और धड़कनों का इम्तिहान ले रहा था। कश्माला का सांस सीने में अटक गया और उसके गाल शर्म और उलझन के मारे सुर्ख अनार हो रहे थे। इसी लम्हे सामने बैठी निशा से ये कुर्बत बर्दाश्त न हुई। वो मुस्कुराकर बलाज की तरफ झुकी और सबकी मौजूदगी में धीमी मगर सबको सुनाती हुई आवाज़ में बोली, बलाज तुम्हें याद है ना, यूनिवर्सिटी के आखिरी साल जब हमारे ख़ानदान के बिजनेस के मामलात ख़राब हुए थे, तब तुमने मुझसे क्या वादा किया था? वो पुरानी फ़ाइल अभी मेरे पास रखी है। निशा के अल्फाज कहते ही बलाज का चेहरा एकदम पत्थर की तरह सख्त हो गया। इसकी आंखों में शदीद खूनख्वार गुस्सा उभरा। इसने मेज़ के नीचे कश्माला के हाथ इतनी सख्ती से भींचा कि कश्माला के मुंह से हल्की सी सिसकी निकलते निकलते रह गई। कश्माला ने चौंक कर बलाज के तने हुए जबड़े को देखा। इसे महसूस हुआ निशा के पास वाकई कोई ऐसा राज फाइल है जिसका खौफ बलाज के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, और यही वो कड़ी सच्चाई थी जिसकी खोज कश्माला को एक खतरनाक रास्ते पर धकेलने वाली थी। डाइनिंग टेबल के इस तलख और पुरस्रार माहौल के बाद बलाज बगैर मीठा खाए अपने स्टडी रूम से चला गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। हवेली के सब मेहमान आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो चुके थे। हर तरफ गहरा सन्नाटा छा गया था, लेकिन कश्माला के ज़हन में निशा के वो जहरीले अल्फाज बार बार हथौड़े की तरह बरस रहे थे। आखिर वो कौन सी पुरानी फाइल और वादा था जिसका जिक्र सुनते ही बलाज का रंग फक हो गया।
कशमाला से अब मजीद ये बेचैनी बर्दाश्त न हुई। वो दबे पांव कॉरिडोर से होती हुई स्टडी रूम के बाहर पहुंची, जहाँ दरवाज़ा हल्का सा खुला था। अंदर की मध्यम जर्द रोशनी में बलाज अपने चौड़े डेस्क पर झुका था। इसके सामने कई पुराने रजिस्टर और कुछ खुफिया दस्तावेज खुली पड़ी थी और उसके एक हाथ में वो सिगरेट धुआं छोड़ रही थी, जिसकी राख एश ट्रे में जमा हो चुकी थी। कशमाला ने देखा कि बलाज के चेहरे पर ऐसी उलझन और करब था जिसने पहले कभी नहीं देखा था। बलाज ने फ़ोन कान से लगाया और इंतहाई धीमी मगर सख्त आवाज़ में बोला, सुनो, मुझे वो तमाम पुराने रिकॉर्ड्स और निशा के सख्त दस्तखत शुदा बयानात की कल सुबह तक हर हाल में चाहिए। अगर इस मामले की भनक भी किसी को लगी तो खानदान का शेयर मार्केट में सब कुछ डूब जाएगा और मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी को इस ब्लैकमेलिंग की नज़र नहीं होने दूंगा। कशमाला के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसे यूँ लगा जैसे बलाज वाकई किसी बड़े राज में फंसा हुआ है और निशा इसी राज के बलबूते पर इसके करीब है। बलाज ने फ़ोन बंद किया और गुस्से से एक फ़ाइल को दराज में बंद करके चाबी जेब में रख ली। कशमाला तेजी से पीछे हटी और अपने कमरे में आकर बैठ गई। इसके मासूम दिल में अब शक की जगह एक अजीब से खौफ ने ले ली थी कि जिस इंसान को वो सिर्फ बेवफा समझ रही थी वो शायद किसी बहुत गहरे और इसरार माजी के जाल में जकड़ा हुआ था। अगले रोज़ खानदान की एक करीबी तकरीब में शिरकत के बाद जब रात को वापसी हुई तो बलाज को एक हंगामी दफ्तरी कॉल आई की वजह से रुकना पड़ा। इसने कशमाला को ड्राइवर के साथ घर रवाना कर दिया। सुनसान और अंधेरी सड़क पर हवेली की तरफ जाते हुए अचानक गाड़ी का टायर जोरदार धमाके के साथ फट गया और गाड़ी सड़क के किनारे झटके से रुक गई। ड्राइवर जैसे नीचे उतरा, अंधेरे में से मोटरसाइकिलों पर सवार चंद निकाबपोश और बाश लड़के नमूदार हुए जिन्होंने गाड़ी को घेर लिया। वो बदमाश निशा के किराए के गुंडे मालूम होते थे, जिनका मकसद कशमाला को खौफजदा करना और ड्रामा खड़ा करना था। कशमाला कार के अंदर खौफ के मारे सिमट गई। इसकी चीखें गाड़ी के बंद शीशों से टकरा रही थी। वो अपने रब को पुकार रही थी। गुंडों ने जैसे गाड़ी का पिछला दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश की, अचानक दूर से तेज लाइट्स की चमकी और बलाज की ब्लैक SUV पूरी रफ्तार से इन मोटरसाइकिलों के आगे आगे तिरछी रुक गई। बलाज किसी जख्मी शेर की तरह गाड़ी से बाहर कूदा। इसके चेहरे पर खूनख्वार गुस्सा था और आंखों में जुनून। इसने बगैर किसी खौफ के इन गुंडों पर धावा बोल दिया, एक एक को जमीन पर पटक डाला। मगर इस अफरा तफरी में एक गुंडे ने लोहे के राड से बलाज के कंधे और बाजू पर गहरा वार कर दिया। बलाज के मुंह से हल्की सी कराह निकली, मगर इसने इस शख्स को ऐसा जोरदार मुक्का मारा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा और बाकी गुंडे खौफ के मारे भाग खड़े हुए। कशमाला रोती हुई गाड़ी से बाहर निकली और बलाज के जख्म से बहते हुए खून को देखकर इसका एक कलेजा मुंह को आ गया। वो बलाज को सहारा देकर हवेली लाई और सीधा अपने कमरे में ले गई। कशमाला के अपने हाथ कांप रहे थे, आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे जब वो गर्म पानी और रुई से बलाज के कंधे का जख्म साफ कर रही थी। बलाज सोफे पर बैठा बिना किसी शिकवे के कशमाला के आंसुओं से भीगे चेहरे को देख रहा था, जिसके दर्द पर तड़प रही थी। जब कशमाला ने मरहम लगाया तो बलाज ने अपने सही हाथ से कशमाला की भीगी हुई कलाई को थाम लिया और इसे अपने बिल्कुल करीब खींच लिया। कशमाला का सांस सीने में रुक गया। दोनों के दरमियान फासला चंद इंच का रह गया। बलाज ने इंतहाई नरम, गहरी और दर्द में डूबी आवाज़ में कहा, तुम तो मुझसे नफरत करती थी ना मिसेस बलाज, फिर मेरे इस जरा से खून पर तुम्हारी ये जान क्यों निकल रही है? कशमाला के पास इस सच्चे जज्बे का कोई जवाब नहीं था। इसे नजरें झुका ली, मगर इनके दिलों की धड़कनें इस खामोश रात में एक दूसरे के राज फाश कर रही थी। कमरे के नीम तारीख गोशों में रात का सकूत गहरा हो चुका था। बलाज की गिरफ्त में कैद कशमाला का वजूद इस गुर्बत की तपिश से मुसलसल कांप रहा था। बलाज के जख्म से उठने वाला दर्द इसके माथे पर पसीने के कतरों की तरह चमक रहा था, मगर इसकी नज़रें कशमाला के चेहरे के हर एक उतार चढ़ाव पर टिकी थीं। कशमाला ने अपने लरजते लबों को बमुश्किल खोला और आंखों से गर्म गर्म आंसुओं को बलाज के जख्मी कांधे पर गिरने से रोकते हुए धीमी आवाज़ में कहा, नफरत करना चाहती हूँ आपसे, मगर ये दिल आपकी तकलीफ पर तड़प उठता है और यही मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। कशमाला की सच्ची और मासूम बात ने बलाज के सीने के अंदर सालों से जमी बर्फ को पिघला कर रख दिया। बलाज ने अपने हाथ की गिरफ्त को कलाई से हटाकर कशमाला के नरम गाल पर रख दिया। इसके अंगूठे ने बड़ी नज़ाकत से कशमाला के आंसू को पूंछा, इसके चेहरे को ज़रा ऊपर उठाया। बलाज की आंखों में पहली बार वो रूखापन और सदमहरी नहीं थी, बल्कि एक गहरा समंदर था जिसमें बेपनाह अपनायत और मोहब्बत मौजूद थी। इसे कशमाला के माथे पर अपने लब रखे और गहरी सरगोशी के साथ बोला, काश तुम समझ सकती मेरे इस गुस्से के पीछे कौन सा तूफान छुपा है। काश तुम मुझ पर भरोसा करना सीख लो। कशमाला का दिल एक अनजाने सुकून से भर गया। इसने खामोशी से बलाज को बिस्तर पर लिटाया और हाथ पर इसके सरहाने बैठकर इसके माथे को ठंडी पट्टियों से तर करती रही। सुबह का उजाला जब खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हुआ तो बलाज का बुखार उतर चुका था और वो पुरसुकून नींद में था। कशमाला थकी हारी सीढ़ियों से नीचे किचन की तरफ जा रही थी कि बरामदे में निशा इसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई।
निशा के चेहरे पर रात के हमले की नाकामी का गुस्सा और हसद वाज़ेह था। निशा ने इंतहाई जहरीले और हकारत भरे लहजे में कहा, बड़ी हमदर्द बनी फिरती हो इसकी। तुम्हें क्या लगता है कि रात को बलाश ने तुम्हारी खातिर जान खतरे में डाली? वो सिर्फ अपने खानदान का नाम बचा रहा था, क्योंकि वो जानता है अगर तुम्हें कुछ हुआ तो इसका कारोबार का वो सारा फ्रॉड अदालत में चला जाएगा, जिसका सबूत मेरे पास है। बलाश ने मुझे धमकाकर और मजबूर करके खामोश करवा रखा है, वरना तुम इस घर में एक दिन भी न रह पाती। निशा के इन जहरीले अल्फाज ने एक बार फिर कशमाला के दिल में सुलगती हुई उम्मीद को खाकसर करने की कोशिश की, और वो शकूक के एक नए भंवर में गिरकर निशा की वो जहरीली बातें कशमाला के मासूम जहन में सारा दिन एक कतोड़े की तरह बजती रहीं। दिल कह रहा था कि बलाज की आंखों में सच्चाई थी, मगर निशा के दिए गए ताने और बलाज के माजी की पूरी सरार खामोशी ने कशमाला के अंदर एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया जिससे चैन से सांस नहीं लेने दे रहा था। वो जानना चाहती थी आखिर वो कौन सा ऐसा काला सच है जिसकी वजह से बलाज पर इतने इल्जामात लग रहे हैं, और वो क्यों हमेशा इससे बातें छुपाता है। दोपहर के वक्त जब बलाज दर्दकश और अद्वियात के जेर असर गहरी नींद सोया हुआ था, कशमाला के कदम गैर इरादी तौर पर स्टडी रूम की तरफ उठ गए। इसका दिल सीने में खौफ के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। इससे लग रहा था कि वो अपने शोर के मान के साथ गद्दारी कर रही है, मगर सच जाने का जुनून इसके तमाम तर असूलों पर हावी हो चुका था। स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला तो अंदर सन्नाटा और उदासी फैली थी। कशमाला ने कांपते हाथों से बड़ी मेज़ के अतराफ की दराजें चेक की, मगर वो सब खुली थी और इनमें रोज़मर्रा की दफ्तरी फाइलें थीं। अचानक इसकी नज़र दीवार पीछे छुपी इस छोटी सी तिजोरी पर पड़ी, जिसकी चाबी बलाज रात के वक्त अपनी घड़ी के साथ साइड टेबल पर छोड़ आया था। कशमाला ने कांपती उंगलियों से चाबी घुमाई। तिजोरी का लोहे का भारी पट हल्की सी आवाज़ के साथ खुला। अंदर एक पुरानी भूरी फाइल रखी थी जिस पर सुख रंग के फीते से गांठ बंधी थी। कशमाला ने वो फाइल निकाली और जैसे इसका पहला वर्ड खुलता, इसके सामने निशा के दस्तखत शुदा कारोबारी शेयर्स और जायदाद के तनाज़े के वो अधूरे कागजात आ गए, जिनमें बलाज की कंपनी पर खुर्द-बुर्द और धोखाधड़ी के इल्ज़ामात का तज़किरा था। कशमाला ने इस फाइल के तमाम सफ़ात को तफसील से पढ़ने की बजाय सिर्फ निशा के लिखे हुए इन जहरीले दावों पर नज़र डाली, जिनमें यह तासुर दिया गया था कि बलाज ने अपने ताया की जायदाद को हड़पने और निशा को खामोश रखने के लिए ये सारा खेल रचाया। कशमाला का सांस सीने में रुक गया, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और इसके हाथ से फाइल छूटकर कालीन पर गिर गई। इसके लिए सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था कि जिस इंसान के लिम्स और मोहब्बत पर दिल हारने लगी थी, वो अंदर से इतने बड़े कारोबारी खेल और फरेब का हिस्सा था। और इसी अधूरे सच ने कशमाला को एक ऐसे दबाकुन फैसले की तरफ धकेल दिया जो इन दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए राह कर सकता था। कालीन पर बिखरे न धूरे और जहरीले कागजात ने कशमाला के बचे कुचे होश और आवाज़ भी छीन लिए। इसकी रूह तक कांप रही थी और दिल की धड़कनें इस बेरहम सच्चाई के बोझ तले दम तोड़ रही थी। इसने सिर्फ निशा के लिखे हुए वो इल्ज़ामात और कानूनी नोटिस की सतरें पढ़ी, जिनमें बलाज को एक मफाद परस्त संगदिल और खानदानी जायदाद पर काबिज दिखाया गया था। वो ये नहीं देख सकी कि फाइल के आखिरी हिस्से में वो तमाम बैंक स्टेटमेंट्स और असली दस्तावेज भी लगी थी जो साबित करती थी निशा का खानदान खुद कंपनी के करोड़ों रुपए डुबोकर फरार होने की कोशिश में था, और बलाज ने अपने खानदान का भरम रखने के लिए सब कुछ अपने सर ले रखा था। मगर अधूरा सच हमेशा पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, और यही जहर कशमाला की रगों में उतर चुका था। इससे रोते हुए वो फाइल वापस तिजोरी में फेंकी, दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में आकर बेड पर गिर गई। शाम के वक्त जब बलाज जागा, इसका कंधा अब भी दर्द कर रहा था, मगर इसके चेहरे पर कशमाला की एक नरमी और मुस्कुराहट थी जो उसने पहली बार अपने लबों पर सजाई थी। वो जैसे ही बेडरूम में दाखिल हुआ, इसने देखा कि कशमाला ने सोफे पर बिल्कुल सीधी सफ़ेद चेहरा और पथराई हुई आंखें लिए बैठी थी, और उसके सामने मेज़ पर एक सफ़ेद सादा कागज़ रखा था। बलाज के माथे पर हल्की सी फिक्र उभरी। वो आगे बढ़ा और इंतहाई मोहब्बत भरे लहजे में बोला, कशमाला, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? कशमाला ने अपनी सूख, नफरत और गहरे सदमे से भरी आंखें ऊपर उठाईं, और इसकी निगाहों में इतनी सदमहरी थी कि बलाज का कदम वहीं रुक गए। कशमाला ने अपनी रस्सी उंगली से इस सफ़ेद कागज़ की तरफ इशारा किया जिस पर काले कलम से चंद सतरें लिखी थीं, और अपनी बर्फ़ जैसी जमी हुई आवाज़ में बोली, ये खुला के कागजात है बलाज साहब। मैं आपसे अपना रिश्ता, अपना वजूद, अपना नाम हमेशा के लिए अलग करना चाहती हूँ। खुला कलर सुनते ही कमरे की फिजा में जैसे एकदम मंजमद हो गई। बलाज के चेहरे पर तैरती नरमी की जगह को ऐसा खौफनाक और खूनख्वार जलाल नमूदार हुआ जिसने कशमाला के दिल को दहला कर रख दिया। बलाज की आंखें खून की तरह सुर्ख हो गईं। इसके जख्मी कांधे का दर्द कहीं गायब हो चुका था। उसकी जगह एक बिखरे हुए तूफान ने ले ली। इसने 2 कदम आगे बढ़ाकर इस सफ़ेद कागज़ को एक झटके से उठाया, इसके टुकड़े टुकड़े करके फिजा में उछाल दिया और फिर पलटकर बेडरूम की तरफ भारी लकड़े के दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। ताले की कड़कदार आवाज़ ने कमरे में मौत का सा सन्नाटा तारी कर दिया।
कशमाला डर कर सोफे से उठ खड़ी हुई, मगर बलाज ने किसी चीते की तरह झपट कर इसके दोनों बाजुओं को इतनी मजबूती से जकड़ लिया कि कशमाला के मुंह से बेसाख्ता दर्द भरी चीख निकल गई। बलाज का चेहरा गुस्से से दहक रहा था। इसे कशमाला को झंझोड़ते हुए धारते हुए लहजे में कहा, खुला चाहिए तुम्हें, मुझसे आज़ादी चाहिए ताकि तुम अपने इस झूठे और खोखले शक की तस्कीन कर सको। इतनी हिम्मत कहाँ से आई तुम में कि तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझसे अलग होने का नाम लो। कशमाला ने अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए इसकी आंखों में आंखें डाली और रोते हुए चिल्लाई, हिम्मत आपकी इस मकरूज सच ने दिया मुझे। मैंने वो फाइल देख ली बलाज, मैं जान चुकी हूँ कि आपने निशा के साथ और अपने खानदान के साथ क्या किया। आप सिर्फ एक खुदगर्ज और दौलत के प्यासे इंसान हैं जिसने मुझे भी अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए मोहरा बनाया। बलाज ने जब ये सुना तो इसका जब मुकम्मल तौर पर जवाब दे गया। इसने कशमाला को अपने सीने के बिल्कुल करीब खींचा, इसका जबड़ा उंगलियों की सख्त गिरफ्त में लिया और इसकी तपती सांसों के दरमियान इंतहाई तलख और करब आवाज़ से गूंजती आवाज़ में कहा, तुमने फाइल देखी मगर तुमने कभी मेरा दिल नहीं देखा कशमाला। तुमने इस चालाक औरत की जहर आलूद बातों को सच माना मगर मेरी रातों की तड़प और अपनी हिफाजत में खाए हुए इस जख्म को एक फ्रेब समझा। तुमने मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं थी। तुम तो सिर्फ इस इंतजार में थी कि कोई बहाना मिले और तुम मेरा गिरबान पकड़ सको। बलाज की आवाज़ में इस कदर शदीद टूट फूट और सच्चा दर्द था कि कशमाला का सांस गले में अटक गया। वो सख्ता के आलम में बलाज के आंसुओं से नम होते चेहरे को देखने लगी जो इसके शक की बुनियादों को बुरी तरह हिला दिया था। बलाज की शदीद तड़प और करब भरे अल्फाज ने कशमाला के अंदर जैसे जलजिला बर्पा कर दिया, मगर बलाज ने मजीद कोई सफाई दिए बगैर झटके से इसका हाथ छोड़ा, दरवाजे का लाक खोला और तूफानी अंदाज में हवेली से बाहर निकल गया। कशमाला वहीं फर्श पर बैठी अपने कांपते हाथों उलझे हुए जहन के साथ रोती रही। इसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर बलाज वाकई गलत था तो इसकी आवाज़ में इतना सच्चा दर्द और शिकवा क्यों था। अगले ही दिन दोपहर के वक्त बलाज की वालदा यानी कशमाला की सास कशमाला के कमरे में आई। इनके हाथ में चाय का कप और चेहरे पर एक उदास सी संजीदगी थी। इन्होंने कशमाला की सूजी हुई सुर्ख आंखें और बेड पर बिखरी उदासी देखी तो इसके पास बैठ गई, उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा। कशमाला अपनी सास के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी और सिसकियों के दरमियान निशा और इस फाइल का जिक्र कर बैठी। ये सुनते ही बलाज की वालदा के चेहरे पर गहरा दुख फैल गया। इन्होंने कशमाला के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और ऐसी सच्चाई का पर्दा चा किया जिसे कशमाला की पूरी दुनिया को उल्ट पुल्ट कर रख दिया। इन्होंने नम आंखों से बताया, बेटा तुमने आधा सच देखा कि मेरे इस बेगुनाह बेटे पर खंजर चला दिया। माजी में निशा और इसके बाप ने हमारे खानदानी बिजनेस के अरबों रुपए हड़प कर लिए थे और जब वो पकड़े गए तो निशा ने बलाज को बदनाम करने की धमकी दी थी। बलाज ने अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए सारा कर्ज और बदनामी खुद पर झेली, मगर इसने निशा से कभी कोई वास्ता नहीं रखा। और रही तुम्हारी बात तो बलाज ने खानदान के किसी दबाव में आकर तुमसे शादी नहीं की थी। इसने तुम्हें पहली बार अपने दोस्त की बहन की शादी में देखा और पहली ही नज़र में तुम्हारी मासूमियत पर अपना दिल हार बैठा। इसने खुद मुझसे तुम्हारा हाथ मांगने की जिद की। सास का एक एक लफ्ज़ कशमाला के दिल पर बन बन के गिर रहा था। इन्होंने मजीद कहा, वो तुमसे दूर इसलिए रहा ताकि वो पहले तुम्हारा दिल जीत सके। वो तुम पर ज़बरदस्ती का हक मुसलत नहीं करना चाहता था, मगर तुमने इसके सब्र को इसकी बेवफाई समझ लिया। कशमाला का पूरा वजूद सख्ते में आ गया। इसके हाथों से जान निकल गई और इससे लगा जैसे वो अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार चुकी थी। सच्चाई का खौफनाक इंकशाफ कशमाला के ज़मीर को छलनी कर चुका था। नदामत, शर्मिंदगी और पछतावे की ऐसी आग इसके अंदर जल उठी जिसमें इसका वजूद राख हो चुका था। वो जिस शोर को संगदिल, बेवफा, मुफाद परस्त समझ कर धुतकारती रही, वो तो इसकी एक मुस्कुराहट पर अपनी जान निछावर करने वाला निकला। कशमाला दीवानों की तरह बलाज के कमरे में गई। इसने तमाम पुरानी फाइलों को दोबारा निकाला और जब आखिरी अवराक देखे तो इसमें बलाज के अपने नाम पर लिए गए वो तमाम कर्जे और निशा के फ्रॉड के सबूत मौजूद थे। और सबसे नीचे कशमाला की वही पुरानी मासूम तस्वीर रखी थी जिसके बीते बलाज के हाथ से लिखा था, मेरी जिंदगी। कशमाला वो तस्वीर को अपने सीने से लगाकर ज़मीन पर गिरकर धाड़े मार मार कर रोने लगी। इसकी चीखें कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। रात के जब बलाज हवेली वापस लौटा तो इसके चेहरे पर ना कोई गुस्सा था ना ही कोई जलाल, बल्कि इसका पूरा चेहरा बर्फ की तरह सर्द और जज्बात से बिल्कुल आरी हो चुका था। इसके कांधे की पट्टी खून से दोबारा तर थी, मगर इसे अपनी कोई परवाह नहीं थी। वो जैसे ही बेडरूम में दाखिल हुआ, कशमाला दौड़ती हुई इसके पास आई, इसके पैरों में बैठने लगी और रोते हुए इसका हाथ थाम लिया। बलाज, मुझे माफ़ कर दें, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। मैं अंधी थी, मैं नादान थी, मैंने आपके सच्चे और पाकीज़ा प्यार को नहीं पहचाना। अब मुझे जो सज़ा देना चाहें दे दें, मगर मुझसे अपना चेहरा मत फेरें।
बलाश ने इंतहाई आहिस्ता और सदमेहाली से अपना हाथ कशमाला की गिरफ्त से छुड़ा लिया। इसकी आंखों में अब वो मोहब्बत भरी तपिश नहीं थी, बल्कि एक गहरी खौफनाक खामोशी थी। बलाश ने कशमाला के सर पर निगाह डाले बगैर गमगीन और बेजान आवाज़ में कहा, खड़ी हो जाओ मिसेस बलाच, अब इन आंसुओं और माफ़रों की कोई कीमत नहीं रही। तुमने मुझसे खुला मांगी थी ना, मैंने अपने वकील को कह दिया है, तुम्हें तुम्हारी आज़ादी बहुत जल्द मिल जाएगी। क्योंकि जहाँ भरोसा ही ना हो वहाँ मोहब्बत की लाश को संभाल कर नहीं रखा जाता। बलाज ये कहकर बेड की दूसरी तरफ जाकर दीवार के सीमत रुक करके लेट गया और कशमाला के लिए इसका ये सर्द लाताल्लुक लहजा इसके गुस्से और गालियों से भी बड़ा 1000 गुना ज्यादा जानलेवा साबित हो रहा था। बलाज की इस नाकाबिले बर्दाश्त खामोशी लाताल्लुकी ने कशमाला की रूह तक को हिला कर रख दिया। मगर अब वो हिम्मत हारने वाली रवायती लड़की नहीं रही। इसने दिल ही दिल में अहद कर लिया। जिस तरह बलाज ने खामोशी से इसके तमाम ताने तलखियां सही, अब वो सच्चे पछतावे और मोहब्बत से इसके दिल पर जमी बर्फ को पिघला कर ही दम लेगी। अगले चंद दिनों में नक्शा मुकम्मल तौर पर पलट चुका था। जो कशमाला कभी बलाज से दूर भागती, अब वो साए की तरह इसके इर्द गिर्द रहने लगी। वो सुबह सवेरे उठकर खुद अपने हाथों से बलाज के लिए नाश्ता बनाती, इसके कपड़े प्रेस करके सलीके से रखती और उसके ऑफिस से वापस आने पर दरवाजे पर इसकी राह तकती। बलाज की कोशिश होती वो कशमाला से नजरें ना मिलाए, इसके लाए हुए खाने को आधा छोड़ देता और इसकी किसी बात का जवाब सिर्फ यूं हाँ में या ना में देता। मगर कशमाला की आंखों में एक शिकवा नहीं बल्कि बेपनाह मोहब्बत थी। एक शाम बलाज थका हारा बेड पर बैठा अपने सर को दोनों हाथों में थामे हुए था। कशमाला ने खामोशी से पीछे ही बड़ी नज़ाकत और मोहब्बत से इसकी कनपटियों को दहावाने लगी। बलाज ने झटके से इसका हाथ हटाना चाहा, मगर कशमाला ने इसका हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर अपने लबों से लगा लिया और नम आंखों से बोली, अब मुझे दूर कर सकते हैं बलाज, मगर अब मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। ये मेरा हक है जो मैं छीन कर लूंगी। बलाज ने बेसाख्ता इसके बीके चेहरे को देखा। इसका दिल एक पल के लिए लर्ज उठा, मगर इसने अपनी मर्दाना ना के तहत खुद को संभाला और बिना कुछ कहे वहां से उठ गया। दूसरी तरफ निशा इन दोनों के दरमियान खुला की खबर सुनकर जश्न मना रही थी, मगर जब इसने देखा कशमाला अब भी हवेली में मौजूद है और बलाज को मनाने की कोशिश कर रही है तो इसके अंदर हसद का नया तूफान जाग उठा। निशा ने फैसला किया वो कल रात होने वाली खानदानी सालगिरह की तकरीब में कशमाला की किरदार कशी करके इसे हमेशा के लिए इस घर से बाहर फेंकवा देगी। मगर वो नहीं जानती थी कि इसकी हर चल किसी की नज़र में है। अगली शाम हवेली का वसीउर इजहाल शानदार रोशनी और खानदानी मेहमानों से जगमगा रहा था। ये बलाज की दादी की सालगिरह की एक बड़ी तकरीब थी जिसमें खानदान का हर छोटा बड़ा फर्द शरीक था। कशमाला ने इंतहाई सादगी मगर वकार के साथ रवायती सब्ज रंग का लिबास सेबतन किया और वह सब मेहमानों की तवाज़ा में मसरूफ थी। जब निशा सुर्ख चमकदार लिबास अपने साजिश मंसूबे को हतमी शक्ल दे रही थी, तकरीब के ऐन अरूज पर जब सब लोग हाल में बीच में जमा थे, निशा ने अचानक ड्रामाई अंदाज में अपना गला साफ किया और हाल में चीखती हुई आवाज़ से सबको मुतवज्जा कर लिया। इसने कशमाला की तरफ उंगली उठाते हुए बुलंद आवाज़ में कहा, बड़ी मासूम और सती सावतरी बनती हो तुम कशमाला, लेकिन सबके सामने तुम्हारी असलियत आना ज़रूरी है। दादी जान ये लड़की बलाज से नहीं बल्कि इसकी जायदाद से मोहब्बत करती है। इसने बलाज से खुला कम तालबा इसलिए किया ताकि वो जायदाद का आधा हिस्सा अपने पुराने आशिक के साथ मिलकर हड़प कर सके। इसके खुफिया बैंक अकाउंट्स के सबूत मेरे पास हैं। पूरे हाल में एकदम होलनाक सन्नाटा छा गया। मेहमानों की चहमगोइयाँ शुरू हो गई और बलाज के ताया और रिश्तेदार उससे से कशमाला को देखने लगे। कशमाला का रंग जर्द पड़ गया, इसकी आंखों में बेगुनाही के आंसू तैरने लगे, मगर इसके पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं थे। बिल्कुल इसी लम्हे हाल की दाखिली दरवाजे पर बलाज के कदमों की बावकार चाप गूंजी। बलाज के चेहरे पर एक पूरी सर्द और खतरनाक मुस्कुराहट थी। इसके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल और कुछ दस्तावेजात थीं। इसने किसी को बोलने का मौका दिए बगैर हाल की बड़ी प्रोजेक्टर स्क्रीन ऑन की। अगले ही सेकंड स्क्रीन पर निशा के अपने बैंक मैनेजर और उनके किराए के गुंडों के साथ खुफिया कार रिकॉर्डिंग वीडियो चलने लगी, जिसमें वो वाज़ेह तौर पर कशमाला पर गाड़ी के हमले की हिदायत दे रही थी और खानदानी कंपनी के अरबों रुपये लूटने का इतराफ़ कर रही थी। हाल में मुझे हर शख्स के होश उड़ गए। निशा का चेहरा खौफ और जिल्लत से सफ़ेद पड़ गया और वो कांपने लगी। बलाज ने गुस्से से दहकती आंखों के साथ निशा के सामने जाकर खड़े होकर वो कागजात इसके मुंह पर मारे और गरजदार आवाज़ में कहा, तुमने सोचा था मैं तुम्हारी इस गंदी साजिश से बेखबर हूँ? तुमने मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की जो मेरी रूह और मेरी ज़ात की हिफाजत में है। बलाज ने ताया और तमाम बड़ों के सामने सिक्योरिटी को इशारा किया, जिन्होंने निशा को बाजू से पकड़कर खींचते हुए हवेली के मरकजी दरवाजे से बाहर फेंक दिया। इस तारीखी जिल्लत के बाद बलाज ने पलटकर पूरे खानदान के सामने कांपती हुई कशमाला का हाथ अपने मजबूत हाथ में लिया, इसे अपने सीने से लगाया और बुलंद आवाज में ऐलान किया, कशमाला मेरी थी, मेरी है और मेरी आखिरी सांस तक मेरी रहेगी। कशमाला की आंखों से खुशी और तशक्कुर के आंसू उभर आए,
क्योंकि इसके शौहर ने सबके सामने इसे दुनिया का सबसे बड़ा मान दिया था। शहर के तमाम हंगामों, रंजिशों और साजिशों के तूफान से मीलों दूर पहाड़ों के दामन में वाक़या लकड़ी के इस पुरसुकून और खूबसूरत कॉटेज में रात उतर चुकी थी। खिड़की के बाहर बर्फ पोश चोटियों को छूती हुई सर्द हवाएं सरसरा रही थीं, जबकि कमरे के एक कोने में बनी फायर पैलेस में जलती हुई लकड़ियों के झटकने की धीमी आवाज़ और उनके सुर्ख शोलों की सुनहरी तपिश पूरे कमरे को एक ख्वाबनाक और सैरंगेज माहौल में ढा रही थी। कशमाला शीशे की बड़ी खिड़की के पास खड़ी बाई तरीके में चमकती बर्फीली वादी को देख रही थी। इसे गहरे नाबी रंग के नरम ऊनी शाल अपने गिरद लपेट रखी थी, मगर इसके अंदर जज्बात और हया का एक नया लावा पक रहा था। बलाज जो काफी देर से कॉटेज के दूसरे कोने में खड़ा खामोशी से इसके नाजुक सरापे को देख रहा था, दबे पांव इसके पीछे आया। बलाज ने थाई नरमी और हक के साथ अपने दोनों बाजू कशमाला के गिरद फैलाकर इसके पेट पर बांध दिए और इसके कंधे पर अपनी थोड़ी टकाई। कशमाला के पूरे वजूद में एक मीठी और पुरकशिश लर्जिश दौड़ी। इसे अपनी आंखें मूंद दी। बलाज के लब इसके कान के लू को छो रहे थे, जबकि मधुश की गहरी भारी आवाज कमरे के सकूत में गूंजी। अब भी कोई खौफ या शक या कोई दूरी बाकी है मेरी जान, या अब भी इस मुनाफिक शख्स से तुम्हें खुला चाहिए? कशमाला ने तड़प कर खुद को बलाज के सार में ही इसकी तरफ घुमाया। इसे अपने दोनों कांपते हुए हाथ बलाज के गले में डाल दिया। उसकी गहरी मोहब्बत से लबरेज सी आंखों में देखते हुए नम लहजे में बोली, मुझे इस दिल की कैसे कभी रहा मत कीजिएगा बलाज। मैंने आपको पहचानने में जो गलती की, मेरा ये सारा वजूद आपके इस पछतावे और मोहब्बत के सामने हार चुका। मैं आपकी हूँ सिर्फ और आपकी। कशमाला के इन वाले अल्फाज और इसके लबों के एतराफ ने बलाज के अंदर सालों से रोके हुए जब्त के तमाम बंधन तोड़ डाले। बलाज ने इसकी शाल को नरमी से सिरका कर सोफे पर गिराया, इसकी कमर को अपनी आहनी गिरफ्त में लेकर इसे हवा में जरा सा ऊपर उठाया। उसके चेहरे की हर नकुश इसके लरज़ से रुखसार हो, फिर इसके कामते गुलाबी लब्बों को अपनी जुनूनी पुरजोश और तपते हुए लिम्स में कैद कर लिया। आग के शोलों की सुर्ख रोशनी में इनके दिलों की धड़कनें एक हो चुकी थी। माजी की तमाम तलखियां इस रात के सहर में जलकर राख हो गईं और इन्होंने एक दूसरे के वजूद में मुकम्मल तौर पर गुम होकर अपनी सच्ची लाजवाब मोहब्बत की नई शुरुआत की। इस यादगार पुरफिजा सफ़र से वापसी के बाद हवेली की फिजाओं में एक ऐसा दायमी सुकून मुसरत उतर आई जिसने हवेली के दरो दीवार को रोशन कर दिया। वो हवेली जो कभी शकूक, नफरत, साजिश और सच जंग का मैदान बनी थी, अब वहाँ हर तरह मोहब्बत, एहतराम, प्रायत की खुशबू रची सी। चंद ही माह अंदर कुदरत ने इन दोनों के इस पाकीज़ा सच्चे रिश्ते को अपनी सबसे बड़ी अनमोल रहमत से नवाजने का इशारा दिया। हवेली में कशमाला के माँ बनने की खुशखबरी गूंजी तो बलाज की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो कारोबार दुनिया का बावकार सदर इंसान अपनी नाजुक बीवी के सामने एक बड़ शफीक, दीवानावार, परवाह करने वाला आशिक मिजाज शोहर बन चुका था, जो कशमाला के एक एक कदम और उसके हर आराम का ख्याल अपने बच्चों की तरह रखता। वक्त के पर सवारी खूबसूरत महीने पलक झपकते गुजर गए और मुबारक घड़ी आ पहुंची जब हवेली के सैन और कशमाला की गोद में एक नन्ही चांद जैसी खूबसूरत परी की सूरत में नई जिंदगी मुस्कुरा रही थी। बलाज की वालदा और दादी ने मिठाइयाँ बांटी, सदके उतारे और पूरे खानदान में जश्न का समा बन गया। शाम के वक्त जब हवेली के कुशादा बाग में ताज़ा गुलाबों की खुशबू फैली थी, कशमाला अपनी नन्ही बेटी को रेशमी झूले में लिए सब्ज घास पर सफ़ेद संगमरमर के बेंच पर बैठी, उसके चेहरे पर ममता नस्वानिया का ऐसा पुरनूर हुस्न चमक रहा था जो देखने वाले की नजरें बांध ले। बलाज दफ्तरी काम खत्म करके सीधा बाग में आया। इसने कोट का बटन खोलकर एक तरफ रखा और जमीन पर घुटनों के बल कशमाला के सामने बैठ गया। इसने पहले अपनी नन्ही परी के नरम गाल को प्यार से छुआ, फिर कशमाला के दोनों हथेलियों को थामकर अपने सीने पर अपने दिल के मुकाम पर रख लिया। ब्याज ने हकीकत और शक्कुर बेपनाह इश्क से चमकती आंखों से कशमाला को देखा और इंतहाई धीमी मगर पुरअज़्म लहजे में कहा, कशमाला, तूने मुझे ना सिर्फ एक मुकम्मल इंसान बनाया बल्कि मेरी बंजर ज़मीन को, जिंदगी को जन्नत का रूप दे दिया। जिस मोहब्बत को कभी शक की नज़र लगी, आज वो दुनिया की सबसे खूबसूरत रिश्ते और सच्चाई की फतह बनकर हमारे सामने है। तुम मेरी कल भी थी, तुम मेरी आज भी, और मेरी आने वाली हर एक सांस सिर्फ तुम्हारे दम से है। कशमाला की आंखों में खुशी के पाकीज़ आंसू चमक उठे। इससे मुस्कुराकर अपना सर बलाज के चौड़े कंधे पर टिका दिया और उनकी ये पुरशोर, तलख और शीरी दास्तान तमाम दुखों, आजमाइश, नफरतों को शिकस्त देकर हमेशा के लिए सच्ची, गहरी और लाजवाब मोहब्बत के एक हसीन अंजाम पर मुकम्मल हो गई थी।